नहीं बनना चाहिए। थिंक इन ए मदर टंग, एक्सप्रेस इन ए एलियन टंग, then you are a genius one. If you know the multiple languages, it will become an advantage we the people. हम कहते हैं एकता अनेकता से आती है। बहुत सारे लोग एक हो जाएंगे तो एकता आ जाएगी, वो कैसे आएंगे? If you stick towards to only one language, then ये एकता कभी नहीं आ सकती। If you stick towards to only one domain, तो हमें नॉलेज कभी नाश नहीं हो सकती। That's why मल्टीपल डिसिप्लिन आना जरूरी है। अब एक रिसर्च हुई है, उस रिसर्च बहुत जल्दी आपके हाथ में आएगी। मैं भी किसी काम से विदेश में था तो मैं देखा वहां वो रिसर्च जो है वो इंडिया की जुगाड़ टेक्नोलॉजी पे रिसर्च हुई है। इट्स वेरी फेमस इन जुगाड़। आई नो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड जुगाड़। कल मैं रेलवे स्टेशन पे निजामुद्दीन में जब चढ़ रहा था ट्रेन पे, तो एक बुजुर्ग महिला का चप्पल टूट गया। सर हवाई चप्पल पहन चल रही थी। दैट इज अ वेरी स्मॉल मैं स्टोरी सुना रहा हूं। ये लर्निंग हमारे लिए होगा क्योंकि ये स्किल की बात करता है। उस स्लीपर पहनी हुई है, तो स्लीपर के नीचे में देखा होगा 3 बटन लगे होते हैं, तो बेचारे की आगे वाली बटन टूट गई, तो चप्पल तो बेकार हो गया। उन्होंने क्या किया, जो यहाँ पे साड़ी में जो पिन लगाई हुई थी उस पिन को खोली और आगे वाले को थोड़ी आगे की और उस सेफ्टी पिन को उसने पुश किया एंड देन सी मैंने उनको रोका। मैंने बोला कि इससे तो गिर जाओगी आप। बोला बेटा खाली पैर से चलना अच्छा है ना कि चप्पल पहन के मैं चल रहा हूं। ये तो कहीं नहीं लिखा था कि चप्पल को चलाने के लिए हमें सेफ्टी पिन लगाना पड़ेगा। बट शी लर्न ना, आई मॉनिटर ना। दैट्स व्हाई राइट नाउ आई एम स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ यू इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। This is not the skill. We have a skill, but we don't know that this skill is really benefit for us. When you understand your power, na, then you become a knowledgeable person. If you don't understand your power, then you cannot be a good person or good teacher or good student. We all are here after achieving something, but I believe कि मैं अभी भी कुछ achieve नहीं किया हूँ, because I am still learning. What I am learning? I am learning lot of things. From lot of people, from the different quarter. Today I learned 2 things. Today I learned that Delhi is not India. India is not Delhi. Be out from Delhi. Then you understand the problem of the India. Good. If I am the person where I can influence the persons, then why I am not influencing? It means I am not doing my job properly. That is my fault. If I understand the problem and I can narrate those problems in front of others, then it will become good for the others. Number 1. Number 2, everyone has a knowledge. But when, how and where that person delivers the knowledge, that is the matter. Writing a research paper is the easiest thing. If you feel from your heart. But if you are writing your research paper only for the promotions, then that research paper will not be a research paper. I am sorry to say. अगर आपको भूख लगी होगी ना तो उस खाने का टेस्ट पता चलेगा, लेकिन आपका पेट भरा होगा और सब कुछ आपके पास रखा होगा तो आप उसको टेस्ट नहीं कभी रियलाइज कर सकते। दैट इज द प्रॉब्लम। नाउ challenges in front of commerce and management. I am writing student can opt commerce subject, management, technology, humanities, everything. तो जो आपके सामने प्रॉब्लम बात हुई उसके हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है, बिकॉज फैकल्टी मेंबर्स आर नॉट अवेलेबल। सर ने कहा कोई फिजिक्स करना चाहता है, कैसे होगा? तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है वहां पर में। अगर ऐसा होता है तो विल क्रिएट ए क्लस्टर कॉलेज। In cluster college, we transfer other students from other colleges, and then they will study the paper. But here is a very good thing कि how a person who is willing to pursue the physics, and physics is not in this entire city, then what is the solution? और साथ में सर कह रहे थे कि अपॉइंटमेंट भी नहीं चल रही है, और जो अपॉइंटमेंट होती भी है तो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है, and they are not getting the reimbursement properly. So these are the common issues. I don't want to pass any comment on that, और मेरा औकात भी नहीं उतना बड़ा कि मैं कुछ बोल पाऊं। But what is the solution? Solution number 1 जो हमारे पास में है
उसकी हम ऑप्टिमम यूज करें। इन प्रिंसिपल लाइक sir is here who is very good in English. Today morning I traveled with him. He is also an English professor. Professor Shukla is there. He is also an English professor. So they told me there are 3 English faculty. Why we are not focusing on English? Why we are not focusing on political science? For business, etiquette is a very important thing. Political science people understand what is liberty. General perception, सबसे लास्ट आप बता पाओगे कितने टाइप की लिबर्टी होती है? लास्ट, यस यस यू कितने टाइप की लिबर्टी होती है? हाँ? अच्छा, मैं वहां बता दो, आप बैठ जाओ मैं वहां बताओ, हाउ मेनी टाइप ऑफ लिबर्टी? यस यस, पता नहीं है, कोई बात नहीं, पता नहीं, यस, हाउ मेनी टाइप? Okay, I got your point. Thank you. Actually, there are 2 types of liberties. One is called the positive liberty, and then is called the negative liberty. In commerce, this liberty is a very important thing. Because in future you want to become entrepreneur, ना? In entrepreneur, आपको पता होना चाहिए कि आपकी वर्कर को कितनी लिबर्टी देनी है। जस्ट आपके नेबर से पूछना चाहूंगा, आपको पॉजिटिव लिबर्टी अच्छी लगेगी या नेगेटिव लिबर्टी अच्छी लगेगी मैम? ओके, रॉन्ग आंसर। अगर आपको पॉजिटिव लिबर्टी दे दी जाएगी तो आप 1 मिनट के लिए इस कॉलेज से बाहर निकल नहीं सकते, 1 मिनट के लिए आप इस कैंपस में नहीं बैठ सकते। नाउ व्हाट इज द पॉजिटिव लिबर्टी? पॉजिटिव लिबर्टी मींस नो रिस्ट्रिक्शन। मैं कपड़ा पहनूं ना पहनूं, मैं हाफ पैंट में आ जाऊं, बरमूडा में आ जाऊं, नो रिस्ट्रिक्शन। मैं खाना खाने के लिए घर में बैठ के खाऊं या मैं सड़क पे बैठ के खाऊं, नो रिस्ट्रिक्शन। मैं यहाँ पे बैठ के गाली दूं या बाहर बैठ के गाली दूं या कुछ करूं, नो रिस्ट्रिक्शन। Can we survive? No. This is the political science domain. If you understand कि political science people will teach you कि भाई this is the liberty, there are 2 types of liberty, positive liberty, negative liberty. For business, negative liberty is important. If there is a restriction, then you will grow, then you will grow, then you will serve the society properly. That is the liberty. अगर कॉलेज में सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक आना है, that is the negative liberty. रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन अगर पॉजिटिव लिबर्टी दे दी जाए तो कोई हो सकता है रात में 11 बजे नींद खुलेगा, मैं चलता हूं मैं कॉलेज में पढ़ाने के लिए, ये भी तो हो सकता है, राइट? जस्टिस पार्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपके यहां से थोड़ी दूर में अजंता एलोरा है, आर्कियोलॉजिकल साइट है, हिस्ट्री इज देयर। इफ वी अंडरस्टैंड द हिस्ट्री विद कॉमर्स, व्हाट ए कॉम्बिनेशन, डेडली कॉम्बिनेशन। If you know the history, if you know the history of these dignitaries, and if you use your commerce in that particular thing, then think about it. You can become a genius person in that particular field. So domain is not important. Important thing is how much you have a thirst, how you want to learn, how much you spend your time on that particular domain. That is important. So you have a G, sir, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाना आप आगे, बस। So in 1968 and in 1986 हम डिजिटल मोड के बारे में नहीं जानते थे, but in 2020 we understand the digital thing. So now we are focusing on develop the e-content. Okay, now we are going towards the MOOC. If we the teacher content develop the content, e-content, then in Apar or Pavas you have an add-on advantage. If we develop the content that is called the MOOC, अगर MOOC के लिए आप बोलते हो या लिखते हो, then it will become extra mileage for you. Now
India is the country where logical power is very high, reasoning power is very high. वर्ल्ड के दूसरे जगहों पे इतनी रीजनिंग और लॉजिकल पावर नहीं है. वी आर वेरी इमोशनल पर्सन एंड इमोशन ऑलवेज गिव यू एड ऑन एडवांटेज इन बिजनेस. बिजनेस मीन्स बिजीनेस. आई रिपीट, बिजनेस बिजीनेस. बिजीनेस फॉर व्हाट? You can busy on economical front as well as non-economical front. If you busy in economical front and non-economical front, then you have an advantage. But if you are busy only on economical front and you ignore the non-economical front, then you will not become an Ambani or Tatas. Tatas and Ambanis or Adanis are giving lot of money in non-economical front also. They are running lot of schools, they are running lot of hospitals, they are running lot of dharamsalas. I belong to Uttarakhand. In Uttarakhand, we have a university called the Hemati Nandan Bhoguna Garhwal University, the central university. In that university, we have a Birla Auditorium. Sir, initially that university was created or funded by Birlas. आप कहीं भी जाओ, बिरला की धर्मशाला मिल जाएगी. अभी अयोध्या इतनी बड़ी राम मंदिर बनी है, वहां पे आप देखो बाहर में अग्रवाल धर्मशाला, लॉट ऑफ अग्रवाल धर्मशाला इज देयर. सर, अभी एक ट्रेन से गुजरात से पुरी जाने वाली ट्रेन जा रही थी. सर, पुरी में जगन्नाथ मंदिर के ठीक सामने में धर्मशाला, लॉट ऑफ धर्मशाला आते हैं. देयर आर द धर्मशाला ऑफ मारवाड़ीज, बिजनेस क्लास. तो व्हाट आई एम सेइंग, देखो इसमें आपकी एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है और इमोशनल कनेक्शन भी कनेक्ट हो रहा है पॉपुलेशन की. दैट वी वांट, दैट इज मिसिंग. दिस इज द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी. ये सारे लोग कहते हैं, मैं थोड़ा इसमें और एक वर्ड यूज कर रहा हूं. दिस इज द एरा ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी. दिस इज नॉट द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी. व्हाई आई एम सेइंग एडवांस टेक्नोलॉजी? फिर बात आ रहा था, साथ में बात हो रही थी, सवेरे आ रहा था, एआई की बात हो रही थी. राइट सर, एआई की बात हो रही थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी. Agree, problem is there. But what is our contribution towards to the AI? We are just talking about the AI. What is our responsibility? What is our duties? Students are taking undue advantage of the AI. They are basically dependent on internet and technology. But they are not putting in their mind. We are here because we already put our mind, by sir. We already explored ourselves. Internet is what? Internet is run by us. Yes, last. Internet के आपसे ही पूछ रहा हूँ, आपसे. Yes, yes. Internet का ऑनर कौन है? Who is the owner of the internet? Yes. Who is the owner of internet? हाँ? सिर्फ स्टूडेंट आपका? हाँ, yes. इंटरनेट सुना है ना? खड़े हो जाओ बच्चे. क्या नाम है आपका? ओके. बच्चे, इंटरनेट सुना है? यूज करती हो? गुड. Who is the owner of the internet? Okay. Anyone is willing to give the answer of internet? Who is the owner of the internet? Sir, no one is the owner of the internet. There is an NGO who is running, operating and maintaining the internet. See the power of NGO. Literally we are under the grip of that NGO, and that NGO's head office is in USA. अमेरिका के पास तो वो सब कुछ है जो आपके मेरे पास नहीं है. टाइम आएगा, आप अपना नाम नहीं बताओगे, आप उसकी मोबाइल नंबर बताओगे. टाइम आएगा. That's why this policy is required. मैं एक और छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं. कितनी हमारी माइंड तेज है. एसकी सुना है? एसकी, ASCII. Yes, anyone heard एसकी? ASCII, American Standard Code for Information Interchange. जो भी आप लिखते हो ना, जो कोडिंग होती है, जो भी नाम लिखते हैं, जैसे आपने लिखा, सपोज करो कि 22, तो 22 is the numerical number. That is called a decimal number system. Computer understand only 0 and 1 binary number. So computer first
translate that 22 into machinery number और machinery language और binary number 0 and 1. उसके मेथड है, कभी आप अपना अगर मोबाइल में देखना लिखा होगा DEC, ठीक है, अगर आपके मोबाइल पे कभी कैलकुलेटर ऑन करना तो उसमें लिखा होता है DEC, HEX, OCT means octal number. In octal number we have 8 numbers 0 to 7. In hexadecimal we have 16 numbers 0 to 9 and then A B C D E F, right? So 22 convert into या 32 ले लो, number is 32 base 10 means 32 का डेसिमल नंबर. अब कंप्यूटर में 32 लिखते हो तो कंप्यूटर किस सिस्टम में 32 नहीं लेता, वो लेता है 1 and 5 times 0 100 base 2, यानी कि सिस्टम कन्वर्ट दैट नंबर इनटू मशीनरी लैंग्वेज. नाउ हाउ मच वी आर पावरफुल, सी वी नो 0 to 9, कंप्यूटर नो ओनली 0 to 1, राइट? और हमें लगता है कंप्यूटर ज्यादा पावरफुल इन कंपैरिजन टू अस, है ना everybody? यानी वी आर नॉट यूजिंग आवर टॉप फ्लोर ना, एग्री? If we use our top floor, then how the system will become powerful? This system is system because we the people are running the system. This NEP describe you how to use that system. Because commerce student can understand, if commerce student understand the IT, information technology, then that information technology will become your slave, वो दास बन जाएगा आपका. आज के वो मास्टर है. क्यों मास्टर है? क्योंकि हमें नकल करने में सहायता करता है, हम अकल नहीं लगाते. प्लीज यूज योर कॉमन सेंस. कॉमन सेंस इज वेरी रेयर. We generally very few people understand how to use the common sense. But whosoever understand how to use the common sense, that person is really genius. That's why I'm saying common sense is very rare. Use common sense. Then you will prevail. अब SQ जो है, there are two type of SQ, SQ7, SQ8. Now what is SQ7? Under SQ7 2 to the power 7 equal to 128 कोडिंग है उसमें. अमेरिकन अंडरस्टैंड कि अब 2 to the 7 पे काम नहीं चल रहा है. अगर आपको याद होगा पहले जब ईमेल आया था तो ईमेल को हम स्मॉल लेटर में लिखते थे. आज के दिन पे ईमेल स्मॉल में हो, कैपिटल में हो, किसी में हो, चालू चल जाता है, नहीं चलता है? चल रहा है. क्यों चला? क्योंकि देन अमेरिकन अंडरस्टैंड कि 2 to the 7 पे काम नहीं चलेगा, 2 to the 8 करना पड़ेगा. देन SQ8 इंट्रोड्यूस्ड. नाउ 256 कोड. और सोचो हमारी बुद्धि कितनी तेज थी. SQ7 और SQ8, पहले दो बार SQ7 पे काम किया, फिर SQ8 पे है. हमारे पास जो अपनी नंबर है दैट इज कॉल्ड ISKI, इंडियन स्टैंडर्ड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. कोई भी सर्च कर सकता है. ISKI, ISSII, sorry, ISCII, Indian Standard Code for Information Interchange. From day 1 to till date 2 to the power 8. हम 256 कोडिंग पे चल रहे हैं. अब कब स्टार्ट हुई थी? जब SQ आई थी, उसके कुछ ही दिन बाद ISKI आ गई थी. सो हम हमेशा दूरदर्शी होते हैं. दिस इज द नेक्स्ट एडवांटेज. हम हमेशा आज में बिलीव नहीं करते हैं. अमेरिकन की सैलरी आती है, उससे पहले उनके खर्चे हो जाते हैं. क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड से खर्चे कर लिया, सैलरी आई उससे पहले चला गया, इसलिए बार बार रिसेशन आता है. हम कहते हैं जितना चादर हो उतना पैर फैलाओ. पहले हम सेविंग करते हैं और फिर खर्च करते हैं क्रेडिट कार्ड से. इसलिए हमारी सेविंग ज्यादा अच्छा है, इसलिए रिसेशन बार बार हमारे पास नहीं आता. हमेशा हम कहते हैं थोड़ा में संतोष रखो, वो कहते हैं है तो कंज्यूम करो. Concept different. That's why this 2020 will become a milestone for us. If we want to be a developed nation, it is possible only with NEP 2020. Because this is club with the IT, club with the AI, club with the nanoseconds, club with the nanotechnology. जब नैनो टेक्नोलॉजी इंडिया में लाने की बात हुई थी, उस टाइम पे सबसे फेमस बात आई थी नैनो कार. याद होगा? नैनो कार के नाम पे बहुत सारी सरकारें उधर से उधर हो गई थी. टाटा ने लॉन्च किया. नैनो कार सक्सेसफुल नहीं लिया. यस और नो? नो. पता है कहां सक्सेसफुल है? श्रीलंका में. आप कोलंबो एयरपोर्ट पर उतरिए, जो टैक्सी आपकी आएगी वो नैनो कार आएगी. इन कोलंबो कैंडी में
नैनो कार, गोंडवाना में नैनो कार, नैनो कार की जितनी भी प्रोडक्शन गुजरात में हो रही है डॉक्टर साहब के स्टेट पे, वो सारे के सारे सर कोलंबो जा रहे हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले कोलंबो में था, कोलंबो में उतरते ही बाहर में नैनो कार मिल गई। मैंने कहा इसको तो रोड पे जितनी भी गाड़ियां दिख रही है सब नैनो कार दिख रहे हैं। क्यों सक्सेसफुल हुआ पता है? कोलंबो पोर्ट सिटी है, श्रीलंका इज स्मॉल सिटी, बड़े गांव की बड़ी जगह होगी, बड़ी जगह पार्किंग की जरूरत पड़ेगी, वहां पे सब जगह ढलान है, कहीं भी साइड पे खड़ा करने की जगह चाहिए, नैनो कार आराम से पार्क हो जाएगा। ऐसे ही आपके फोन में नैनो चिप चल रहे हैं। दिस इज द ईरा ऑफ टेक्नोलॉजी, अडॉप्ट दिस वन। इसीलिए आपकी जो पूरी की पूरी पॉलिसी है, आप देखो डिसिप्लिन कोर्स कर रहे हैं, मैं खत्म कर रहा हूं क्योंकि मेरे टाइमिंग मैंने देखा अभी 30 मिनट्स आपने लिखा हुआ था, ठीक है? तो जो आपकी पूरी की पूरी सिस्टम है, उस सिस्टम पे ये टेक्नोलॉजी इज बिकमिंग वेरी पावरफुल। So when you learn the languages, accommodate the technology, so technology will become top up on your language. आज मोबाइल में टॉप अप करा रहे हैं ना, चार्ज कराते हैं ना, ऐसे ही आपको चार्ज करेगा टेक्नोलॉजी विल टॉप अप ऑन योर दैट। और उसके ऊपर में चेरी क्या होता है? उसके ऊपर में जो केक के ऊपर जो चेरी खाने के लिए सारे बच्चे केक काटने से ज्यादा इंटरेस्ट होते हैं चेरी खाने में, वो चेरी होता है हमारी स्किल। इनकम टैक्स इज द सब्जेक्ट, पढ़ा रहे हैं हम लोग सारे के सारे इनकम टैक्स, है ना? सारे 5 हेड पढ़ाते हैं। यस सर, 5 हेड इनकम टैक्स में सैलरी, बिजनेस एंड प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, इनकम, अदर सोर्सेस, खत्म। उसके बाद इंडिविजुअल पढ़ाते हैं, एचयूएफ पढ़ाते हैं, ट्रस्ट पढ़ाते हैं, कंपनी पढ़ाते हैं, एओपी भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन पढ़ाते हैं, फाइन। लोकल, ये सारे हम हार्ड कॉपी में पढ़ा रहे हैं, पर रिटर्न तो हार्ड कॉपी में फाइल नहीं हो रही है, रिटर्न तो सॉफ्ट कॉपी में फाइल हो रही है, एग्जेक्शन फाइल बनानी पड़ रही है। इफ यू डोंट नो हाउ टू फाइल द ऑनलाइन एप्लीकेशन, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट इनकम टैक्स? When income tax, there are 2 regimes, old regime and new regime. Old regime 80C, 80T, 80U, deductions are there. But in new regime, only one deduction, contribution in NPS, 80CCD. बाकी सारे खत्म है। So under the new regime, how you file your return, you don't know. So what is the use of that particular subject? That's why this NEP 2020 is important. We learn income tax, but we are not able to apply that income tax in our day-to-day life. अगर हम कहते हैं I am the professor of commerce, और आप कहते हैं I am the teacher of commerce, और आप कहते हैं I am a student of commerce, अड़ोस पड़ोस के लोगों को जुलाई के महीने में याद आता है बच्चा ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दोगे? आप बोलोगे कर तो देता, पर मुझे तो प्रैक्टिकल नॉलेज ही नहीं है, थ्योरी नॉलेज है। बोलेगा यार मैं कहाँ पढ़ाई कर रहे हो, यही कमेंट होगा ना। They use. That's why this technology is important. E-filing is important. Income tax is important. I'm not saying income tax is not important, but along with income tax, e-filing is most important because society expects you will know something about e-filing, how to generate the ID, how to file the income tax return, what are the rules and regulations for ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4. If you don't know these things, then that is very unfortunate. Why we are in the commerce major? Why we are in commerce? Why we are not in Hindi or English? अगर एक इंग्लिश का टीचर या इंग्लिश का स्टूडेंट को पोएट्री के बारे में नहीं पता, प्रोज के बारे में नहीं पता, शेक्सपियर के बारे में नहीं पता, then what is the point to learn the English? Why? If Hindi student don't know what is Dinkar, then who is Sumitra Nandan Pant? Then what is the use of that Hindi? मैं गलत तो नहीं कह रहा? This is the point. That's why this is required. See, हम कहते हैं कि self employment is the key for this generation. अगर आपको रिटर्न फाइल करना आ गया ना, तो in the month of July, minimum, if you charge 500 rupees from each person, you can easily earn in thousands. और अगर आपने उसी को प्रोफेशन बना लिया, तो in the entire year you can earn the money. This is the point. हम रिसर्च कर रहे हैं, मैं थोड़ी सी और एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसमें एक्सेल है? हाँ है। इसमें एक्सेल है? हाँ।
जरा इसको बंद करके एक्सेल प्रोग्राम चला, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगा। रिग्रेशन में ऑल ऑफ यू नो द रिग्रेशन? यस, अवेयर अबाउट द रिग्रेशन? कोई ऐसा है जिसको रिग्रेशन के बारे में नहीं पता रिग्रेशन क्या होता है? इन स्टैट्स फॉर्मूला ऑफ आर इज द बिगेस्ट वन, सबसे बड़ा फॉर्मूला होता है आर का। R equal to sigma dx dy minus sigma dx into sigma dy upon n whole upon under root sigma d square x upon minus sigma dx upon n whole square under root sigma dy sigma dy square minus sigma dy upon n whole square under root. This is the formula. बोलने में लग जाता है 30 सेकंड, याद करने में कितना टाइम लगा होगा सोच सकते हैं। अब उस पे प्रॉब्लम ये है कि 2 वेरिएबल्स अगर है तो उसको इस फॉर्मूला से निकालोगे तो dx dy बराबर बोल रहा हूं मैं, यानी कि x की वेरिएबल है y की वेरिएबल है, लेकिन अगर x y और z आ गए, 3 वेरिएबल आ गए, अब टीचर से पूछो आप कि सर या मैम देयर आर 3 वेरिएबल्स, नाउ हाउ टू कैलकुलेट रिग्रेशन? पहला आंसर होगा टीचर, बेटा सिलेबस में नहीं है, दिस इज आउट ऑफ सिलेबस। सेकंड आंसर, मैम फिर भी आई वांट टू लर्न, but it's very difficult. It will take a lot of time. Our time allotted only 1 hour. Why you are wasting your time? भाई फैक्ट बोलो ना, मुझे नहीं आता यार। But because teacher cannot say कि मुझे नहीं आता, right? मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, छोटी सी चीज दिखाऊंगा, आप देखो लाइव कैसे ये चीज क्लियर हो। मैं बोर तो नहीं कर रहा आपको? Not आप बता रहे हैं। Suppose the year is say 2001, 2002. बैठिए 2001, 2002 ऐसा करके मैं ये ईयर को लेके चला गया अप टू 2021 तक।